and welcome friends. Welcome to my channel Coding with Anand. I am Anand and today I am back with my new project that is college placement system, and this is developed in React and Spring Boot API. So let us start with the new project, my project description. So this is the home page actually. तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हमारे सामने पेज आता है दैट इज़ लॉगिन पेज एंड दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल द roles basically. So actually there are four kind of role in this system. The first one is admin, who is able to create HOD, student and companies, and once they are created they will be able to log in and perform their functionalities. And if I'm talking about the HOD role, it is basically related to like we basically delegate our roles. The college basically delegate our its role to HODs to add the student and like that. So student is for applying the job for a particular job in the company, and the company is for generating the job and apply and process the job applications. Okay, so let's start one by one. So this is my first admin role. Let's say admin, and if I choose this one, look at this. So this is the admin dashboard. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, 4 चोडी हैं और 4 कंपनी हैं, और सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. मैं अगर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से भी क्लिक करके स्टूडेंट्स पर जा सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हैं. सो यहाँ पर मैं जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ देन आई कैन ऐड द स्टूडेंट. लेट्स सपोज मैं कोई नया स्टूडेंट लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज इसे, और इसका नाम मैं दे देता हूँ रिया वर्मा. एड्रेस ले लिया नोएडा, जेंडर फीमेल, riya@gmail.com and 10101999, and this is the phone number, and the branch is let's suppose computer science and password. Register now. Let's register. Now we can see that Riya Sharma has been registered. So जो हमारे टॉप में जो रिसेंटली हमारा जो ऐड हुआ होगा वो सबसे टॉप पर नज़र आएगा, एंड वी कैन सी द डिटेल्स. राइट नाउ ये 0% इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमें स्टूडेंट खुद से अपने एंड पे करेगा, और रिज्यूम भी उसका तभी यहाँ पर दिखाई देगा एडमिन को जब वो स्टूडेंट का जो है अपलोड कर चुका होगा स्टूडेंट. Okay, so if I want to add it any detail I can add it. Like suppose I want to update this one, so I cannot update the email ID because it is basically it becomes the user ID for their login. Okay, so let's update it successfully and we can see. Okay, and let's suppose if I want to delete any item, then we can delete and click on this one, then okay, and delete it successfully, and that's it. So this is the way how we basically perform all the operations that are available on the screen. Okay, so let's suppose I want to add one more student. That is basically one more thing I basically want to tell you that I will update this one too. Basically I will show you here is and I think job application, no issues, job, no issues. Okay, that's it. Fine. So I would like to add one more student. Let's suppose मैं यहाँ पर एक और student add करता हूँ. That is basically let's suppose this one, and let's suppose इसका नाम हम दे देते हैं आनंद सिंह, दिल्ली, मेल. यहाँ पर मैं एक वैलिड ईमेल आईडी दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस स्टूडेंट को जब सेलेक्ट करूँगा तो इसके पास एक मेल जानी चाहिए जिससे उसे कंफर्म हो जाएगा कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो इस वजह से मैंने अभी से दिया है. एंड कंप्यूटर साइंस, पासवर्ड, रजिस्टर नाउ. Student has been registered, listing out here. Okay. So HOD हमारे पास एक सेकेंडरी रोल है
जो हमारा इसी काम को परफॉर्म करेगा। लेट्स सपोज मैं एक एचओडी बना देता हूँ और मैंने इसका कहा हरीश कुमार और नोएडा, द मेल डिपार्टमेंट इज मैनेजमेंट, submit, and we can see that HOD has been added. Okay, we can add it any detail if I want, and in the same way now let's suppose I am going to add a new company. So this company, let's suppose the company name is हमारे पास कौन कौन सी कंपनी है यार, अभी हमने फेसबुक का, गूगल का, डैफोडिल और गूगल, और इस तरह से हमने बहुत सारी कंपनियां बनाई हैं, ग्लोबल लॉजिक हमने बनाई है, और लेट्स सपोज यहाँ पर हम बना देते हैं एक कंपनी जिसका नाम ले लेते हैं कॉग्निजेंट लिमिटेड। लेट्स सपोज दिस इज न्यू दिल्ली ब्रांच and www.cognizant.com, info@cognizant.com. This is the contact number and this is the password. So I am copying this one, let's save it, and on the same way basically आप edit भी कर सकते हैं इसकी information को, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं। let's suppose मैं 6 से शुरू होने वाला नंबर ले लेता हूँ और उसकी हम जो है ये वेबसाइट भी अपडेट कर सकते हैं। मैंने भी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिक्स किया हुआ है क्योंकि ईमेल आईडी को हम यूज़र आईडी की तरह यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स सपोज लेट्स लुक एट द ओपनिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि किस किस कंपनी ने क्या क्या ओपनिंग्स दे रखी हैं, क्या डेजिग्नेशन है, उसे क्या रिक्वायरमेंट है, उसका सैलरी पैकेज क्या है, लाइक दैट। उसकी और डिटेल जानने के लिए आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा है, लाइक दैट। ओके, दिस सिलेक्टेड स्टूडेंट जो आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। कॉलेज इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना चाहते हैं तो सेव करके रख सकते हैं। चेंज पासवर्ड ऑप्शन, इट्स अ सिंपल थिंग, और आप एक एक करके चल लेते हैं। मैं एक बार HOD का रोल और दिखा देता हूँ। मैंने हरीश के नाम से बनाया था, harish@gmail.com, पासवर्ड एंड HOD। सो यू कैन सी हरीश को स्टूडेंट ऐड करने का और डिलीट करने के राइट्स भी हैं। प्लेसमेंट ड्राइव, जहाँ पर आपको सारी प्लेसमेंट दिखाई देंगी राइट नाउ कौन कौन सी हैं, और चेंज पासवर्ड, नॉट सो मच डिफरेंट। इट्स basically delegation of rights from admin to HOD. Limited rights has been allotted to him. So अब मैं जाता हूँ अपने उस स्टूडेंट के पास जिसका मैंने अभी बनाया था यूज़र, जीमेल नहीं, आई थिंक हॉटमेल था ना। लेट्स सी वन मोर टाइम। ओके, मैंने जीमेल वाली ले ली है ना, कोई बात नहीं, आनंद, और यहाँ पर ला करके मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट लॉगिन। सो ये हमारे पास स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो अपडेट करना चाहता है तो वो जैसे 10th कौन से साल में कंप्लीट की थी, लेट्स सपोज उसने की थी 2018 में, और 15 कर लेते हैं, और उसकी परसेंटेज थी लेट्स सपोज 75%, और फिर 2017 में उसने 12th किया था और वहाँ उसकी परसेंटेज थी लेट्स सपोज 70%, और ग्रेजुएशन उसका है लेट्स सपोज 2020 का, और जहाँ उसकी CGPA लेट्स सपोज 8 GPA। और रिज्यूमे मैं अपलोड करवा देता हूँ यहाँ पर, कोई भी डाउनलोड किया हुआ डॉक्स फाइल मेरे पास है नहीं क्या भाई? ये ले लेते हैं पेरेल, और यहाँ पर आकर के मैं उसे सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे सबमिट करूँगा, अब ये मेरे पास यहाँ आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। मैं एनी टाइम अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ रिज्यूम को तो अपने पुराने रिज्यूम को डाउनलोड भी कर सकता हूँ और अपलोड भी कर सकता हूँ। ओके, इफ़ आई वांट टू डाउनलोड आई कैन डाउनलोड दिस वन एज वेल। ओके, सो दिस इज़ ओपनिंग्स, और यहाँ पर मैं देखता हूँ, अच्छा अभी कंपनी ने तो कुछ किया नहीं है, तो पहले हम उस कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। अप्लाइड जॉब, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट। हमने क्या दिया था, पेस्ट कर लेते हैं, कॉग्निजेंट को कंपनी से लॉगिन कराते हैं अब। तो कंपनी ने लॉगिन किया, और यहाँ आप देखेंगे जॉब, होम पर तो ये आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और अगर मैं जॉब पर जाता हूँ, लेट्स सपोज जॉब हमारे पास क्या है कि हम नई जॉब ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे। लेट्स सपोज मैंने कहा हमने कहा फ्रंट एंड डेवलपर,
और यहाँ पर डेजिग्नेशन तो ये हो गई उसकी, और उसे चाहिए लेट सपोज रिएक्ट जीएस, और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रिएक्ट HTML5 CSS and JavaScript, Bootstrap and React.js. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हो गई। एक्सपीरियंस में हम लिख देते हैं फ्रेशर, हम लोगों को फ्रेशर्स चाहिए, और परसेंटेज हम दे देते हैं लेट सपोज हमें 55% चाहिए 12th में, या 60% ले लेते हैं, और ग्रेजुएशन GPA हमने ले लिया लेट सपोज 6 GPA होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास 10 है। सैलरी पैकेज ले लेते हैं लेट सपोज 12 लाख पर एनम, LPA लिख लीजिए, कुछ भी है। यहाँ पर सबमिट किया, और अगर मैं जॉब पर जाता हूँ, ओके वाई द जॉब्स नॉट एडिट, फ्रंट एंड डेवलपर, that is so, let's see one more time। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इसे देख लेते हैं कि हमारी हिट जा भी रही है या नहीं। नेटवर्क टैब, अरे भाई जा तो रही है, बट इट सेज ओके। मैंने एक्चुअली में अभी जॉब को सही किया था, तो उस वजह से कुछ इश्यूज हैं। कंपनी कंट्रोलर, ओके नाउ लेट्स लोड। ओके फाइन, मैं शायद कंट्रोल एस दबाना भूल गया था वहाँ पर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जॉब देख पा रहा हूँ अपनी 12 लाख पर एनम, और ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन है जॉब का कि जो हमारे पास हमने जॉब में डाला था, और मैं कभी भी इसे डिलीट भी कर सकता हूँ इस जॉब को। लेट सपोज मैं कोई टेस्ट जॉब डालने की कोशिश करता हूँ, टेस्ट 23 और नंबर ऑफ सीट 3, लेट सैलरी पैकेज 12, और मैं अगर लेट सपोज इसे डिलीट करना चाहता हूँ, आई कैन गो एंड डिलीट। ओके फाइन, सो दिस इज़ द वे। यहाँ पर ये हमारे पास फ्रंट एंड की जॉब है जो हमने यहाँ पर दिखा दी है, और एप्लीकेशंस होती हैं कि जो हमारे पास कैंडिडेट की एप्लीकेशन आई हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसकी कहानी भी क्या है। ये जॉब तो हमने लगा दी है, तो मैं यहाँ पर अब स्टूडेंट में जाता हूँ। तो स्टूडेंट हमारा था smart.anandSingh@gmail.com पासवर्ड, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट से लॉगिन करता हूँ, और मैं ओपनिंग्स में जाता हूँ, तो मुझे कॉग्निजेंट की जॉब दिखाई देगी। लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, लेट्स व्यू। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपकी परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट वेदर दे आर कंसिडरिंग ऑल द कंपोनेंट्स एंड देन दे कैन रिजेक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पर तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर कम भी होती मेरी परसेंटेज तब भी चलता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि भाई यहाँ पर मेरी कितनी परसेंटेज अभी, तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी कम होती तो उसके बावजूद भी मैं अप्लाई कर सकता था। ओके, सो अप्लाइड जॉब में आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ अप्लाइड आ गया है उसका स्टेटस, और मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, और मैं वापस से कंपनी में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करते हैं तो ये कंपनी का आ गया। कंपनी में आने के बाद मैं जॉब्स में देख रहा हूँ, ये जॉब्स हैं, और ये एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि मेरा जो मैंने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था वो यहाँ पर है, और मैं उसकी क्लिक करके डिटेल देख सकता हूँ। तो स्टूडेंट की यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन सारी आ रही है। जॉब का प्रोफाइल ये है जो रिक्वायर्ड है हमारी जॉब में रिक्वायरमेंट, और ये कैंडिडेट का प्रोफाइल है। तो मैं उसे अप्रूव या रिजेक्ट यहीं से कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 12th में कितनी परसेंटेज चाहिए थी, और इसको है बिल्कुल, ये है बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ। वंस आई अप्रूव, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बिल्कुल स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, और मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर से वो चला गया है। और क्योंकि वहाँ तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो है ये लगाया हुआ है कि जिनको मैंने अभी प्रोसेस नहीं किया है बस वो ही, तो मैं यहाँ एक और प्रोसेस्ड का और बनाना चाहिए वैसे। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरी ईमेल आईडी थी, जो मेरी ईमेल आईडी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डियर आनंद सिंह, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब।
तो ये हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको कर सकता हूँ। और लेट सपोज मैं यहाँ पर जा कर के देखता हूँ एडमिन और मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, तो आप देखेंगे सिलेक्टेड स्टूडेंट में अपने आप से 3 हो गए। एंड लुक एट दिस। तो ये हमारा भाई बंदा जो है, इसका ब्रांच नहीं दिख रहा है, ब्रांच अपडेट नहीं हुआ क्या? ब्रांच अपडेट नहीं है भाई तेरा, ब्रांच फील्ड ही नहीं है क्या? अरे नहीं यार, स्टूडेंट में देखना पड़ेगा ना। पहले मैं कॉलेज भी लेकर के चल रहा था। ब्रांच कहाँ गया? ये रहा ब्रांच। अच्छा, ब्रांच मैंने ऐड नहीं किया था क्या? चलिए कोई नहीं, मैं देखता हूँ इसे भी कि क्या है, फंडा हुआ है शायद। में भी मैंने अपडेट के कोड में थोड़ा भी रह गया है, तो यहाँ ब्रांच भी लिखा हुआ आ जाता है वैसे। चलो कोई नहीं, हम अपडेट कर देते हैं अभी के लिए। कंप्यूटर साइंस ENCE that's updated and if I go to the selected student, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ। तो ये हमारे पास हो गया कि ये बंदा इस ब्रांच का था हमारे कॉलेज में, और ये कॉग्निजेंट लिमिटेड में प्लेस हुआ है, और ये इस पोस्ट पर लगा है, और ये इसका सैलरी पैकेज है। तो ये हमारा फ्रेम बन गया ना यहाँ पर कि किस तरह से कहानी हो रही है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क करता है कि प्लेसमेंट सिस्टम किस तरह से चलती है हमारे पास, ठीक है। तो डैशबोर्ड में हमें यहाँ नज़र भी आ रहा है कि हमारे कितने स्टूडेंट जो है वो प्लेस हो चुके हैं अलग अलग कंपनीज में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट माय प्रोजेक्ट डू। और ये प्रोजेक्ट आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है वैसे मुझे एक आध कमी दिखाई दी है, दैट्स नॉट सो मच बिग, वी कैन कंसिडर दैट थिंग एज वेल। सो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट देन यू कैन कनेक्ट टू मी। और अगर आप इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन आई ऑल्सो डेवलप प्रोजेक्ट फॉर दैट। सो यहाँ तक रखते हैं हम आज के लिए। ये मेरा आज का प्रोजेक्ट था। मैं फिर एक और नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल पर बने रहें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर completing my 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड थैंक यू ऑल। मिलता हूँ अगले प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।